So students, in this lecture we will be studying about one compartment open model IV infusion administration. Myself Dr. Prabjot Singh, Associate Professor, Department of Pharmaceutics, Chaudhary Devilal College of Pharmacy, Haryana, India. So as you know that drugs can be given through intravenous routes. They can be given in two ways. They can be given as a bolus administration, in which all of the dose is given in a very short duration of time, or the drug can be given as infusion. So in infusion the drug is given at a constant rate, so that a constant level of drug can be maintained in the body. So you can see from the picture that a nurse or a healthcare person is administering or injecting a drug injection into the IV fluid. So this drug is then dissolved in the IV fluid, and then it can be given to the patient in drop wise or at a constant rate, so that the level of a drug can be maintained in the body. तो बच्चों आप देख सकते हैं इसके अंदर, तो ये इसके अंदर जो ड्रग है वो जो IV फ्लूइड्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज लगाते हैं, नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन लगाते हैं, लिंगर लैक्टेट लगाते हैं, तो इन सोल्यूशंस के अंदर ही जो ड्रग होती है उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है, जो बाद में फिर एक कांस्टेंट रेट पे, रेट कैसे सेट करते हैं, फ्रॉम द IV इन्फ्यूज़न सेट, उसके अंदर होता है कि कितने ड्रॉप्स पर मिनट उसके अंदर आगे पेशेंट के वेन में जा रहा है वो, तो उसके हिसाब से एक कांस्टेंट रेट पे ड्रग को एडमिनिस्टर कर दिया जा सकता है. सो इंट्रावेनस ड्रग सोल्यूशन मे बी आइदर गिवन आइदर एज अ बोलस और इन्फ्यूज स्लोली थ्रू अ वेन इनटू प्लाज्मा एट अ कांस्टेंट और ज़ीरो ऑर्डर रेट. तो जो कांस्टेंट रेट होता है वो ज़ीरो ऑर्डर होता है. द मेन एडवांटेज फॉर गिविंग अ ड्रग बाय IV infusion is that IV infusion allows precise control of plasma drug concentrations to fit the individual needs of the patient. तो इसके साथ हम क्या है कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी ड्रग बॉडी में जाएगी पेशेंट की, और एक इंडिविजुअल पेशेंट के हिसाब से उसकी जो ज़रूरत होती है उसके हिसाब से हम उसके वेट के हिसाब से उसके डिजीज़ स्टेट के हिसाब से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. फॉर ड्रग्स विद नैरो थेरेपेटिक विंडो, एग्जाम्पल हेपरिन, IV infusion maintains an effective constant plasma drug concentration by eliminating wide fluctuation between the peak maximum and trough minimum plasma drug concentration. तो जो ड्रग्स होती हैं जिनकी नैरो थेरेपेटिक विंडो होती है, मतलब जिनका हाई मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन के बीच में जो डिफरेंस होता है बहुत कम होता है, ऐसी ड्रग्स को भी हम इस रूट से दे सकते हैं. Moreover, the IV infusion of drugs such as antibiotics may be given with IV fluids that include electrolytes and nutrients. तो electrolytes के साथ जो बॉडी में हम फ्लूइड्स देते हैं उनके साथ ही इसको ड्रग्स जैसे एंटीबायोटिक्स हैं उनको दे सकते हैं. Furthermore, the duration of drug therapy may be maintained or terminated as needed using IV infusion. तो अगर हमने थेरेपी में कोई दिक्कत आ जाती है, हम उसको बंद करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एकदम से इन्फ्यूज़न को रोक सकते हैं. पर अगर ओरल रूट की हम बात करें उसके अंदर हम उसे नहीं एकदम से बंद कर सकते, और अगर कंटिन्यू करनी है तो हम उसे कंटिन्यू भी रख सकते हैं. सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व फॉर कांस्टेंट IV infusion. So you can see that on y-axis is plasma level, on x-axis is time. So with time the concentration of drug in body increases, and then it becomes it achieves steady state, it becomes constant. So this level is known as steady state level. Because no drug was present in the body at zero time, the drug level rises from zero drug concentration and gradually become constant when a plateau or steady state drug concentration is reached. At steady state, the rate of drug leaving the body is equal to the rate of drug infusion rate entering the body. Therefore, at steady state, the rate change in the plasma drug concentration dC by dt is equal to 0. dC by जो रेट चेंज ऑफ ड्रग है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि स्टेडी स्टेट पे जाके जो जितनी ड्रग बॉडी में आ रही है उतनी ही एलिमिनेट होती रहती है. सो दिस इज़ द डिपिक्शन ऑफ मॉडल. सो एज यू कैन सी हेयर इज़ इनपुट,
infusion rate constant is known as R naught. It is a zero order rate constant, therefore 0 is written. Then X is the amount of drug in body, Vd is the volume of distribution, and the elimination occurs from this single compartment only, and the elimination rate constant is Ke, and we can see that input and output can be done from the model, from the system. Therefore this is a open model. Drug is free to enter and leave the system. So this is depiction of one compartment open model IV infusion. So next we will start with the derivation. At any time during infusion, the rate change in the amount of drug in the body dx by dt is the difference between zero order rate of drug infusion R naught and फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ एलिमिनेशन. तो जितनी बॉडी में ड्रग आ रही है और जितनी जा रही है, उन दोनों का जो डिफरेंस होएगा वो हमारा रेट चेंज ऑफ ड्रग इन बॉडी है. डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू आर नोट इज द इनपुट कॉन्स्टेंट एंड माइनस के ई एक्स इज द आउटपुट. So as the output is by first order, therefore the equation is Kcn for the order of reaction. अगर उसके अंदर जो n की पावर 1 हो जाती है, 0 होती है, तो वो Kc रह जाता है सिर्फ, और नहीं तो वो आपके अगर इस केस में जैसे ये आपका 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर में ये के एक्स आता है, इसलिए साथ में अगर आपने पढ़ी होंगी जो ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शंस की इक्वेशन होती है और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, तो अगर हमारा उसके अंदर जो नॉर्मल इक्वेशन होती है वो के सी रेज टू द पावर एन होती है, तो एन इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो जब एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होएगा 1 तो आपका सी रह जाएगा. सी की जगह हम एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि एक्स इज इक्वल टू वी डी सी एंड वी डी इज़ कॉन्स्टेंट फॉर अ ड्रग. और अगर आपका 0 हो जाएगा तो फिर x नहीं आएगा, फिर क्या हो जाएगा के सी रेस टू दी पावर एन एन 0 हो गया तो के सी कट जाएगा वहाँ से, तो आर नोट तो ऐसे ही आएगा और के ई एक्स पूरा आएगा. सो उसके बाद हम इंटीग्रेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ अबव इक्वेशन करेंगे. सो इक्वेशन बिकम्स x इज इक्वल टू आर नोट अपॉन के ई इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंट रेस टू द पावर माइनस के ई टी. सिंस x इज इक्वल टू वी डी सी, दिस इक्वेशन कैन बी ट्रांसफॉर्ड इनटू कंसंट्रेशन टर्म्स एज फॉलोज. तो x की जगह c लगा देंगे और इस हिसाब से वी डी आ जाएगा यहाँ पर. c इज इक्वल टू आर नोट अपॉन के ई वी डी इंटू 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस के ई टी, एंड वी नो के ई वी डी इज़ द क्लियरेंस सी एल टी. तो ये इक्वेशन आ जाएगी इसके अंदर. एट स्टार्ट ऑफ कॉन्स्टेंट रेट इन्फ्यूजन द अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी इज 0, हैंस देयर इज नो एलिमिनेशन. ठीक है, शुरू में बॉडी में कोई ड्रग ही नहीं है तो एलिमिनेशन भी नहीं होएगी. एज टाइम पासिस द अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी राइजेस ग्रेजुअली, एलिमिनेशन रेट लेस देन रेट ऑफ इन्फ्यूजन until a point after which rate of elimination equals the rate of infusion, that is the concentration of drug in plasma approaches a constant value called as steady state, plateau or infusion equilibrium. तो धीरे धीरे जब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वो एक स्टडी स्टेट पे आ जाएगा. तो ये वही ग्राफ है, इसके अंदर हमारे पास 2 रेट पे इन्फ्यूज़न करी हुई है. एक तो नीचे वाला कर्व है, ठीक है, और एक ये ट्वाइस द दिस रेट. पहले का आर नोट है, दूसरे का 2 आर नोट है इन्फ्यूज़न रेट. सो वी कैन सी डैट सी एस एस जो है इसकी यहाँ तक जो छोटा जो कम रेट पे आर नोट है उसकी यहाँ पर सी एस एस आ गई है, और जब हमने उसको आर नोट को डबल कर दिया तो उसका सी एस एस यहाँ चला गया. इसकी स्टडी स्टेट डबल होगी इससे. तो ये इन्फ्यूज़न टाइम है, यहाँ पर इन्फ्यूज़न स्टॉप कर दी है. तो इस लास्ट पॉइंट से जहाँ पर इन्फ्यूज़न स्टॉप कर दी गई है, अगर यहाँ से हम डाटा लें बॉडी में से और इसका एक सेमिलॉग ग्राफ बनाएं, उसका जो स्लोप होएगी वो हमें वैल्यू के ई की दे देगी. एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस के ई अपॉन 2.303. ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आएगा एट स्टेडी स्टेट the rate of change of amount of drug in body 0, hence the equation becomes 0 is equal to r naught minus ke x ss.
तो के एक्स की जगह इन्होंने क्या कर दिया, एक्स एस एस कर दिया। यहाँ पर एक्स एस एस मीन्स द अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी एट स्टेडी स्टेट। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी के ई एक्स एस इज इक्वल टू आर नोट। अब इसको वैल्यू को हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। सो ट्रांसफॉर्मिंग टू कंसनट्रेशन टर्म्स, एक्स की जगह सी एस एस कर दिया हमने। सी एस एस इज इक्वल टू आर नोट अपॉन के ई वी डी इज इक्वल टू आर नोट अपॉन सी एल टी। के ई वी डी क्लियरेंस होती है, तो जो स्टेडी स्टेट कंसनट्रेशन है वो किसके बराबर होएगी, इन्फ्यूजन रेट अपॉन क्लियरेंस। Where XSS and CSS are amount of drug in the body and concentration of drug in plasma at steady state respectively, the value of Ke and hence T half can be obtained from the slope of straight line obtained after a semi logarithmic plot log C versus T of plasma concentration time data gathered from the time when infusion is stopped। जब हमारी इन्फ्यूजन स्टॉप हो गई उसके बाद जो डाटा हमें मिलेगा उसको अगर हम लॉग सी वर्सेस टी प्लॉट करेंगे तो उस ग्राफ से हमारी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के ई आ जाएगा, और उससे 0.693 अपॉन के ई से क्या आ जाएगा, हमारा टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी। अल्टरनेटली के ई कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग इन्फ्यूज़न टू स्टेडी स्टेट एज फॉलोज। तो इसके अलावा जो ये डाटा यहाँ से लेके ज़ीरो से लेके जब इन्फ्यूजन चली जितने टाइम, इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन को यूज़ करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग आर नोट अपॉन सी एल टी। आर नोट ऑफ सी एल टी की वैल्यू डाल देंगे सी एस एस के बराबर इक्वेशन में, सी एस एस डाल देंगे इसमें 10.37 इक्वेशन है जो, यहाँ से हम वैल्यू ले लेंगे सी एस एस की और डालेंगे किसके अंदर, जो हमारी ये इक्वेशन आई थी आर नोट अपॉन सी एल टी में की जगह क्या डाल देना है, सी एस एस। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, C इज इक्वल टू सी एस एस 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस के ई टी। रीअरेंजमेंट करेंगे इसकी, इनको इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टर्म्स को, तो हमारी इक्वेशन सी एस एस माइनस सी अपॉन सी एस एस इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस के ई टी आ जाएगी। इसके बाद हम इसको लॉग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। लॉग सी एस एस माइनस सी अपॉन सी एस एस इज इक्वल टू माइनस के ई टी अपॉन 2.303। इसका जब हम एक सेमी लॉग प्लॉट बनाएंगे लॉग सी एस एस माइनस सी अपॉन सी एस एस वर्सेस टी का, तो हमारा जो इसकी स्ट्रेट लाइन आएगी स्लोप, नेगेटिव स्लोप आएगी उसकी माइनस में, क्योंकि ऊपर से नीचे को कर्व जा रहा है, और जो उसकी स्लोप की हमारी वैल्यू आएगी वो माइनस के ई अपॉन 2.303 होगी। तो यहाँ से हम एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को निकाल सकते हैं और टी हाफ को हम निकाल सकते हैं। The time to reach steady state concentration is dependent upon elimination half life and not infusion rate। तो steady state कितनी देर में हमारी रीच होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हाफ लाइफ पे डिपेंड करता है, ना कि इन्फ्यूजन रेट पे। एन इंक्रीज इन इन्फ्यूजन रेट विल merely increase the plasma concentration attained at steady state. If n is the number of half lives passed since the start of infusion, T upon T half equation can be written as C is equal to CSS 1 minus half n। अब इस इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे कि कितनी हमारी हाफ लाइफ्स लगती हैं स्टेडी स्टेट को रीच होने में। द परसेंट ऑफ CSS अचीव्ड एट एंड ऑफ ईच टी हाफ इज द सम ऑफ CSS एट प्रीवियस टी हाफ एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रिमेनिंग आफ्टर अ गिवन टी हाफ। तो कितनी CSS आपकी ड्रग रिमेनिंग है और कितनी CS आपकी अचीव हो गई है, उसके सम को हम करेंगे। तो पहली हाफ लाइफ पे 50% ड्रग आपकी रिमेनिंग थी, तो 50% उसमें CSS अचीव करा था उस टाइम पे। उसके बाद सेकंड हाफ लाइफ पे हमारी जो ड्रग आ गई 50 प्लस 25 आ गई, 75 बन गई। फिर अगली हाफ लाइफ पे ड्रग हमारी बॉडी में और कम हो जाएगी क्योंकि एलिमिनेशन हो रही है, तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग विल भी एक नया अमाउंट आ जाएगा ड्रग का बॉडी में, और बाकी क्या है पुराने वाली ड्रग डिक्लाइन हो जाएगी उसकी, तो 75 प्लस 12.5 हो जाएगा, वो 87.5 आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ हाफ लाइफ पे क्या होएगा 87.5 प्लस ये 93.75 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा
For therapeutic purpose, more than 90% of steady state drug concentration in the blood is desired, which is reached in 3.3 half lives. It takes 6.6 half lives for the concentration to reach 99% of the steady state. Thus, the shorter the half life, example penicillin G 30 minutes sooner is the steady state reached. तो जितनी आपकी कंसंट्रेशन हाफ लाइफ ड्रग की कम होएगी उतनी जल्दी उसकी स्टेडी स्टेट रीच हो जाएगी। तो अब दिक्कत क्या हो जाती है कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनकी हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे किसी ड्रग की मान लो हाफ लाइफ 12 आवर्स है, तो एक पेशेंट को हमने इन्फ्यूज़न स्टार्ट कर दी, अब उसकी 3.3 हाफ लाइफ चाहिए, मतलब कि 12 घंटे 36 घंटे के अंदर वो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन रीच करेगी, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि हमें जो उसका इफेक्ट देना है वो एकदम से देना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उसको दोनों चीज़ें दे देंगे, इन्फ्यूज़न प्लस लोडिंग डोज। लोडिंग डोज मीन्स बोलस, और इन्फ्यूज़न तो आपको पता चल ही गया है क्या होता है। इट टेक्स वेरी लॉन्ग time for drugs having longer half lives before the plateau concentration is reached, example phenobarbital 5 days। तो 5 days लगते हैं phenobarbital की steady state पहुंचने में। Thus initially such drugs have sub therapeutic concentration। तो इसलिए क्या होएगा, उनकी जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है बॉडी में वो सब थेरापेटिक रहेगी, मतलब इफेक्ट नहीं देगी। दिस कैन बी ओवरकम बाय एडमिनिस्ट्रिंग एन IV loading dose large enough to yield the desired steady state immediately upon injection prior to starting the infusion. It should then be followed immediately by IV infusion at a rate enough to maintain this concentration। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जैसे स्टार्ट ऑफ इन्फ्यूज़न ये है, धीरे धीरे बॉडी में ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और एक प्लाज्मा कांस्टेंट लेवल पे पहुंच रही है, तो हम क्या करेंगे, एकदम से साथ ही एक उसको लोडिंग डोज दे देंगे, और वो क्या करेगा, एकदम से स्टार्ट ही कहाँ से होएगा, कांस्टेंट लेवल से स्टार्ट हो जाएगा, 0 टाइम पे। तो स्टार्टिंग जो इन्फ्यूज़न ने तो बहुत देर में जाके पहुंची थी, 6 हाफ लाइव्स के आसपास कांस्टेंट लेवल पहुंची थी, पर लोडिंग डोज क्या करेगा, एकदम से ही कांस्टेंट लेवल का जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिक्वायरमेंट है वहाँ पर एकदम से उसको अचीव कर लेगा। सो इन दिस वे वी कैन एडमिनिस्टर्ड बोथ लोडिंग डोज एंड इन्फ्यूज़न साइमल्टेनियसली। तो इसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन है, रिकॉलिंग वंस अगेन द रिलेशनशिप x इज इक्वल टू VDC, द इक्वेशन फॉर कंप्यूटिंग लोडिंग डोज कैन बी गिवन एज, तो x इज इक्वल टू VDC हमने पढ़ा है x नॉट L, इसका मतलब है लोडिंग डोज इज इक्वल टू CSS इंटू VD। इस इक्वेशन को हमने यूज़ करना है, और जो CSS है उसकी जगह क्या डाल देना है, R0 अपॉन KE VD, पिछली इक्वेशन से 10.37 से लेके। तो इक्वेशन बन जाएगी लोडिंग डोज इक्वल टू R0 अपॉन KE। द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल फॉलोइंग साइमल्टेनियसली IV loading dose and constant IV rate infusion is the sum of two equations describing each process, that is modified equation 10.5 and 3.5। C is equal to x naught L upon VD minus e raised to the power minus KT plus R naught upon KE VD इंटू 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस KT। तो ये तो IV इन्फ्यूज़न की इक्वेशन आ गई, और जो ये बोलस की इक्वेशन है, अगर आपने पढ़ा हो जो मैंने पढ़ाया था आपको कि log C इजकल टू log C नोट माइनस KET अपॉन 2.303, और जो उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म था वो था C इजकल टू C नोट ई रेस टू द पावर माइनस KET। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, C नोट की जगह क्या डाल दिया है, x अपॉन VD, बाकी इक्वेशन वही है। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करा है, इसके बाद इन्होंने क्या करा है, इफ़ वी सब्स्टिट्यूट CSVD फॉर x नोट L, तो यहाँ पर CSVD डाल दिया, ठीक है, और R नोट की जगह CSS KEVD डाल दिया। तो जो इक्वेशन है ये कैंसिल आउट हो जाएगी और सिर्फ क्या रह जाएगा, C इज इक्वल टू CSS रह जाएगा, इंडिकेटिंग डेट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा रिमेन्स कांस्टेंट स्टेडी थ्रू आउट द इन्फ्यूज़न टाइम। तो इससे हमें पता चलता है कि आप बोलस के साथ अगर आप IV इन्फ्यूज़न भी दे दोगे तो भी जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट ही रहेगी।
इसके बाद आता है असेसमेंट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि आपका जो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट कैसे निकलेगा, उसके दो तरीके बताए गए हैं। या तो आप जब इन्फ्यूज़न रोक दें उसके बाद के डाटा को प्लॉट करें लॉग सी वर्सेस टी, उसकी हाफ स्लोप से आप के ई निकालें और उससे हाफ लाइफ निकालें। या फिर आप जो डाटा आपका इन द इन्फ्यूज़न प्रोसेस है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सी एस एस वाली इक्वेशन है, सी एस एस माइनस सी अपॉन सी एस एस, वो वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन and total systemic clearance can be estimated from steady state concentration and infusion rate using equation 10.37। तो 10.37 इक्वेशन ये थी, सॉरी ये सी एस एस इज इक्वल टू आर नोट अपॉन के ई वी डी इज इक्वल टू आर नोट अपॉन सी एल टी। तो इस इक्वेशन को यूज़ करके हमें जब आर नोट पता होगा, सी एस एस पता होगा, आर नोट इज़ द इन्फ्यूजन रेट, वो हमें पता ही होता है कि किस रेट से हम ड्रग को डिलीवर कर रहे हैं बॉडी के अंदर। सी एस एस स्टेडी स्टेट कंसनट्रेशन हम निकाल सकते हैं यूजिंग द डाटा हमें पता चल जाएगा कि ऐसे धीरे धीरे कंसनट्रेशन बॉडी में बढ़ती चलेगी और एक पॉइंट पे वो स्टेडी होगी, उस कंसनट्रेशन को स्टेडी स्टेट कह देंगे। तो ये हमारे पास डाटा आ जाए, के ई हमारा ग्राफ से आ गया, ठीक है। तो वी डी हम पता लगा सकते हैं, एक बार वी डी पता चल गई तो के ई इंटू वी डी हमारी क्लियरेंस यहाँ से निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम इसके जो पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे निकाल सकते हैं। इसके अलावा दीज टू पैरामीटर्स कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टोटल एरिया अंडर कर्व टिल द एंड ऑफ इन्फ्यूज़न। जब तक इन्फ्यूज़न का एंड होता है उसका एरिया अंडर कर्व निकाल लेंगे, उससे भी हम ये पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। आर नोट इंटू टी डिवाइडेड बाई के ई वी डी, टी इज़ द इन्फ्यूज़न टाइम। तो ये आपकी सारी की सारी आई वी इन्फ्यूज़न है। इसके लिए वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आई वी इन्फ्यूज़न का सारा डिस्कशन है। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।